Hi viewers, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. She is a renowned tarot रीडर और अपनी क्लैरिटी और अपने सही डायरेक्शंस के पाथ को लेकर के चलने वाली एक ऐसी बेहतरीन टैरो रीडर हैं जो सबको सही डायरेक्शंस दिखाती हैं और उनके बहुत ही रीडिंग्स बहुत ही कमाल के होते हैं और आज हमारे ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और मैं उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो वेलकम गायत्री जी। गायत्री सहदेव जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। Namaste, and thank you so नमस्ते। much for your beautiful, kind words. थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू बिकॉज आई एम हैविंग यू हियर। Lovely. इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। Thank you for me as well. या सो गायत्री जी, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जितना मैं So, बता सकती थी मैंने बताया, बाकी आप बताइए अपनी जुबानी अपनी कहानी। right. So, I am definitely from Delhi itself, and I'm somebody who has become very spiritual now in my life due to the course of my life. I've learned things, I've gone through struggles like we all do. It could be emotional struggles, financial challenges. Being able to stand up on your own feet was also a challenge for me. You know how it is when you're born and brought up and raised in Delhi. Everything is not as rosy and as beautiful as it sounds, right? Being born as a female itself is such a big challenge in this world, and it's a blessing. So, when you talk about my birth and how I grew in my life, I have gone through several challenges to eventually hold God's hand. Okay. I was about 21 years old when I realized that being spiritual, being meditative, adopting better habits, eating vegetarian food, connecting with right people was so important for my own personal growth. And even though I've studied a lot and I had my dreams and aspirations of starting my own business, right? I did all of that. I had my own wedding planning company. There are lots of goals in terms of starting up a business and entrepreneurship that I have accomplished. But somehow, spirituality, I feel, is my calling. Okay. I feel that guiding people, helping people through spirituality, through my tarot cards, through all these beautiful messages that are there in these cards, is what gives me satisfaction. It's not just reading for them, but it's also paving their life ahead. It's about giving them guidance so that they can kind of, go ahead in a better way in life. And today I've realized that with the spiritual courses that I've done and the values that I have brought into my own life, I feel very proud and happy being वंडरफुल। spiritual now. वंडरफुल। Yes. Thank you. सो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? Entrepreneurship journey was a beautiful journey. So I had done a course from London in international relations, and I wanted to become a diplomat at that point. Okay, which is big dream. But when I came back to India and I sat for my IAS exams, I realized how tough it is to adjust to a system which would not be like me. Right? That was not me. Then I realized corporate job kar lete hain. So I did several corporate jobs. I did my internships with Airtel. I worked with Grant Thornton. I worked with the French embassy. So I've got several companies in my CV. Then I said, okay, fine, let's be a little more independent and open up something that I love doing or I like doing. Is when I started the journey of entrepreneurship. ओके। Because I was a creative person and I liked, setting up things, making them look more pretty than um, whatever jo mere mind mein tha that I want this wedding to look like this. That is when I started getting to wedding planning. Then I started my own wedding company called Wedding Spell. As a networker, as networking is one of my, you would say, strengths. So I collaborated with good people, set up my own company. I got an award for it also. I did a couple of weddings and events and choreographies and creative things like that. That was my entrepreneurship calling. And I realized that that would give me some sort of freedom to not be under somebody, but to be able to curate something all by yourself, right? To be able to be more financially independent. So it was a good journey. It was good till it lasted. ग्रेट। सो टैरो रीडिंग और स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे आया फिर?
So, 7, 8 years back, I encountered a tarot deck at this bookstore in GK2, which is called Kunzum, जहाँ पे मैंने अभी भी recently एक workshop collaboration करी है. Kunzum में, when I encountered this tarot, I was very intrigued. पहली बात तो ये spiritual चीज है, Right. जो मैंने आपको बोला I love. उसके ऊपर से ये एक ऐसी चीज है जिसकी नॉलेज भी अप्लाई होती है, जिसके बारे में आपको सीखना भी पड़ता है. Right. And it is something that I really got interested in. So I opened the deck, I read about it, I did a couple of online courses. I did one course from a beautiful reader in London. Her name is Chandini. And I learned from her. And after that, there was no looking back. Initially, I used to just read for people, like, over a cup of coffee, randomly, पढ़ लिया कभी किसी friend के लिए. And then it kind of grew and became more and more professional. Now I have my brand called Astara. I have a shop in GK1. Now I've kind of formalized it to a more energy exchange. You would say slightly more, not a coffee exchange, but a energy exchange where there is a fees involved. There are certain manifestation programs. In my shop now, I have candles, I have crystals, I have things that a person can use as a tool to manifest a certain area of their life. For example, love or money, career, their marriage, finances. कोई कोई लोग होते हैं जिनको बिजनेस तो करना है पर वो कर नहीं पाते हैं, है ना? So that is where these manifestations help, these products and guidance. Nice. Yes. तो बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? एक्चुअली अब तो बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि अब तो बिजनेस और स्पिरिचुअलिटी मेरे इंटरलिंक्ड है ना. है ना? अब तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है. अब इट इज इन माय ओन शॉप व्हिच इज अस्टारा, है ना? दैट Right. इज in a way you can say my business, but more than that it is my spiritual satisfaction that I get out of helping people. So now they are both intertwined, which I love. So कौन-कौन से चैलेंजेस और हर्डल्स को आपने फेस किए? मैंने बहुत challenges फेस किए अपनी लाइफ में, बहुत. कोई एक ऐसा जो कभी आप भूल ना पाती हो which is touched by your heart? मेरे को एक बारी ना कुछ जैसे कि अब मुझे कुछ चाहिए होगा या मुझे कुछ खरीदना होगा, ठीक है? या आप मैं कह सकती हूँ मुझे कहीं जाना होगा फॉर अ हॉलिडे, और मेरे को बोल दिया गया होगा कि नहीं है भाई, पैसे नहीं है, टिकट नहीं ले सकते, आप जा नहीं सकते. ठीक है? एक स्मॉल चैलेंज है. तो Right. जब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो वो तो यही बोलेंगे आपको कि हमारे पास ना टिकट के पैसे हैं तुम्हारे लिए, ना तुम्हारे जाने के मीन्स हैं. तो उतने में बंदा निराश हो जाता है. राइट? Anytime you're dependent on somebody, this is the case. The day you become independent, you can buy your own ticket, you can fly, and you can live your own life. Definitely, you don't have to ask You don't have to anyone. ask. So, the real core essence of becoming a woman who wants to be financially independent has been seeded in me since I was a very small child. Mm-hmm. I never wanted to ask somebody and then hear a no without a good reason, you know? You're getting my point? Yeah. So now I just feel happy. I can buy whatever I want. I can go get a coffee if I want to. I can go help somebody if I feel like. I can donate a t-shirt or a cloth to somebody, or buy them a food product, or just give charity if I feel like giving it. Up to me. है ना? So I've become more of a independent person with my work. Wonderful. Yeah. क्या आपको लगता है इंट्यूशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है? Oh yes, 100%. 100%. जैसे बहुत सारे बिजनेस वाले आते हैं मुझसे पूछने कि आपको लगता है कि ये पर्सन के साथ हाथ जोड़ने चाहिए, कोलैबोरेशन करना चाहिए, तो सारे टैरों में आ जाता है कि ये पर्सन कब कैसे आपको धोखा देगा, उससे पहले ही विड्रॉ करके आप खुद से कर लो. तो बिजनेस में तो इंट्यूशन बहुत काम करता है. यू शुड नो कि आपके सामने कैसा पर्सन है जिसके साथ आप काम करने वाले हो. पहली बात. Right. Yeah. Right. Yeah. Right. Okay.
गायत्री जी, आज के टाइम में लोग स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? गाइडेंस के तरफ इसलिए लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सोल्स है ना, ये जो आत्मा आई है इस धरती में, इस कलयुग में, वो इतनी वीक हो चुकी हैं कोई भी रीजन से। चाहे वो ड्रग्स करती हो, अल्कोहल पीती हो, है ना, या वे कोई भी गलत काम कर, उनकी परखने की शक्ति इतनी कम हो गई है कि उनको खुद ही नहीं पता क्या करना है। अब उनको इस स्थिति में तो गाइडेंस चाहिए ही है, that राइट। what should we do next, because they don't know firstly how to get out of addictions, how to become stronger, how to follow their own path of life, है ना। वो किसी चीज में अच्छे भी होते हैं तो वो भी नहीं कर पाते, कोई कोई लोग, जब तक कि उनको मोटिवेट ना करो या गाइडेंस ना दो। हम्म। तो राइट। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको गाइडेंस की जरूरत है, अब स्पेशली। जी। आपके पास कौन से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो जो बहुत सारी मतलब सिमिलर, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं जो सबसे ज्यादा आपके पास ऐसे क्लाइंट हो? सबसे ज्यादा नंबर वन में तो फाइनेंसेस के बारे में आते हैं, ठीक है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कि ये पर्सन का मनी सिचुएशन कब बेटर होगा, पहली बात। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इसके साथ मेरा रिलेशनशिप कितनी देर तक चलेगा। उस दिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, किसी ने मुझसे पूछा, पैसे वैसे तो सब है मेरे पास, बस लड़की नहीं है अच्छी। you know, so there are a lot of people who have all the money in the world but they don't have a good relationship, so that is another big samasya now. ओके। टैरो रीडिंग को लेकर के लोगों के माइंड में सबसे ज्यादा बड़ा मिथ क्या है? सबसे ज्यादा फेयर तो है कि हमें कुछ ऐसा मत बता देना जिसकी वजह से हम डर जाएं, ऐसा कुछ मत बता देना जो हम सो नहीं पाए रात को। तो मैं उनको कहती हूँ, भाई बहुत सारे फेक रीडर्स होते हैं जो आपको डरा देंगे या गुमराह कर देंगे, लेकिन मैं तो आपको गाइडेंस ही दूंगी। तो वही बोलेंगे जिस चीज में आप थोड़ा उठ जाओ, थोड़े आपकी पॉजिटिविटी हाईलाइट कर दें, या वीकनेस भी ऐसे बोलें कि आप डरो ना, जो उसको ठीक करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए बोले। तो ये तो है ही टैरो में। राइट। एक छोटा सा इंसिडेंस, छोटा सा क्या मतलब, बहुत ही छोटा सा है। मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती थी पहले जब नया नया टैरो रीडिंग आया था। तो हम्म। आई वॉज कनेक्टेड विद अ लेडी, शी वॉज फ्रॉम गुवाहाटी, एंड शी सेड आप तो रीडिंग मैंने देख लिया आपका, एंड क्या करोगी, आप तो जल्दी मर जाओगी, कोई फायदा नहीं है आपका देखने का। ओ हाँ हाँ, लॉट ऑफ पीपल डू दैट टू स्केयर एंड यू। देन शी सेड आप मुझे 8,000 रुपए दो, मैं आपकी पूजा कर दूंगी। आई वेरी सेड बैड। थैंक यू, लेट मी डाई। That is so wrong. This is what people do. You know, it is supposed to guide you. Tarot is supposed to guide you. It is not a way to scare you so that they say कि अच्छा आप ये कर दो तो हम आपसे वो ले लेंगे या ये ले लेंगे। ये सब नहीं करते हैं प्रॉपर रीडर्स। उतनी ही गाइडेंस दो जितनी जरूरी है, और सच राइट। गाइडेंस दो। झूठ राइट। बोलने का जरूरत नहीं है, बिकॉज टैरो कार्ड्स में ऑलरेडी वो आ ही जाता है। हम्म। अब इंसान को पढ़ना नहीं आता है सामने, बट वो जो लिखा है वो सच ही है, जो भी आ रहा है उसके अंदर, जो आ रहा है वो गाइडेंस है आपकी। अब कैसे एग्जैक्टली। परसीव करता है वो आगे का पर्सन, वो उसके ऊपर है, और वो रीडर के एग्जैक्टली। ऊपर है कि रीडर समझाएगा कैसे। तो जब आपसे कोई रीडिंग लेता है तो आप साथ में रेमेडीज भी देती हैं? हाँ जी, ऑलवेज। ऑलवेज मैं उनको एक ऐसा कार्ड देती हूँ जिसमें एक सजेशन, एक रेमेडी, या फिर कभी कभी कोई रिंग पहनना होता है, कोई जेमस्टोन पहनना होता है, किसी को पोखराज पहनने के लिए आज सजेस्ट किया था मैंने, टू इंक्रीज देयर पॉजिटिविटी। फिर कभी किसी को क्रिस्टल पहनना होता है, जैसे कि लव रोज क्वार्ट्ज टू इनहेंस लव, अट्रैक्ट लव। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। मेरे को तो रेमेडीज देने में खुशी है कि बंदा अपने प्रॉब्लम को लेके दवाई लेके ठीक हो जाए तो दोबारा उसको आने की जरूरत नहीं पड़े। करेक्ट। करेक्ट। राइट। करेक्ट। करेक्ट। सो आपके अकॉर्डिंग सक्सेस और इनर पीस में क्या कनेक्शन है? बहुत ही बड़ा, मुझे तो लगता है पहले इनर पीस और उसके बाद सक्सेस। मेरे को तो ऐसा लगता है आज के टाइम में जो इंसान शांत है ना और अंदर से खुश है, उसका सक्सेस रेट हायर है।
जो इंसान अंदर से खुश नहीं है, वो जितनी मर्जी पैसे कमाने की कोशिश कर ले, वो पैसों को यूटिलाइज भी नहीं कर पाएगा. Right. So I think Because peace he is not is, happy. he's not happy. So how will you use the money? If you have the money and you are on a wheelchair, Right. can you use that money? You cannot, because you can't Cannot. walk. No. You can't walk. So peace and happiness first, and then your success follows. जी. गायत्री जी, एक कुकून बन गया एंजाइटी का आजकल. Hmm. एंजाइटी में, डिप्रेशन में लोग बहुत जा रहे हैं. स्पेशली अगर मैं बात करूं तो फीमेल्स की, हर एक को छोड़ करके एक बंदी मुझे बोलती है पॉडकास्ट पे या कहीं पर जो मेरे कनेक्शंस होते हैं या Hmm. नेटवर्किंग मीट्स होती हैं, जैसे मैं जाती हूँ तो मैं देख पाती हूँ ऐसी. हमारा यूथ जो यंग जनरेशन है, गर्ल्स में मैं ज्यादा देख रही हूँ, हर एक लड़की, एक मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं एंजाइटी में हूँ. वाई, क्योंकि मतलब ऐसा क्यों वाई है? बिकॉज एंजाइटी और डिप्रेशन में इसलिए है क्योंकि उस लड़की के लिए, ज्यादातर लड़की के सारे आउटकम्स बाहर से आते हैं, अंदर से तो उनको कुछ बदलाव नहीं चाहिए. वो चाहते आए मेरे प्लेट में डालें और मैं खुश हो जाऊं. ऐसे तो होगा नहीं. तो जब तक कि वो, उनको वो पैसे नहीं मिलते, वो बैग नहीं खरीद पाते, तब तक तो वो फड़फड़ाते रहते हैं. राइट. बिकॉज एवरीथिंग हैज बिकम सो एक्सटर्नल. वो मुझे वो गुची वाला बैग चाहिए, मेकअप लगाना है, ये करना है, वो करना है. अरे भाई, जब तक तुमको वो पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे कि मतलब वो वो वाला. रेडी हाँ, प्लेट चाहिए, खुद कुछ नहीं करना. रेडी प्लेट चाहिए, क्योंकि खुद से उनको ना मेडिटेशन करनी है ना. खुद से उनको अंदर की शांति नहीं चाहिए. उनको चाहिए बाहर की खुशियां. अब बाहर की खुशियां में तो गारंटी नहीं है कि कोई और आपको खुश करेगा. कोई और आपको खुश कैसे कर देगा बाहर से, जब बंदा ही आगे का अच्छा नहीं होगा. तो फिर वो बोलेंगे ओ आई एम डिप्रेस्ड, वो पर्सन ने आज मुझे दुखी कर दिया. अरे भाई, किसी और ने तुमको दुखी कर दिया, तुम दुखी हो गए. किसी और ने ड्रग्स किए, एंजाइटी तेरे को हो रही है. अंदर खुद का भी तो कुछ चेंज करो ना, ताकि आप खुद भी उठ पाओ और अपने लिए कुछ काम कर. सो आई फील दैट द यूथ एंड द फीमेल्स टुडे should stop externalizing their life and depending on other people for their happiness, because एग्जैक्टली. that will never happen. Nobody can give you happiness. Nobody can give you happiness from the outside, so you'll have 100 reasons to be depressed and anxious and sad. जब उनके पास है ही नहीं आपको देने के लिए, तो आपको कैसे मिल जाएगा? करेक्ट. मतलब मैंने देखा है लड़कियों को, बैठी हुई हैं, कुछ काम नहीं कर रही हैं, तो क्यों है सैड? ओ बिकॉज उनके बॉयफ्रेंड ने या उनके फादर ने या उनके हस्बैंड ने उनको इस महीने के पैसे नहीं दिए. अरे भाई, कम ऑन, that you can't be living in such a world where हम कहते हैं विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन शुड बी स्ट्रांग, उसके ऊपर से आप सब पे डिपेंड करते रहते हो. तो कभी भी बाहर किसी पे डिपेंड मत करो, तब बहुत खुश हो जाओगे. यस, डू समथिंग ऑफ योर ओन. भगवान पे भरोसा रखो, बस. फोकस ऑन गॉड, अपना मेडिटेशन करो और अपनी खुशी ढूंढो अंदर से. जी. कोई ऐसा क्लाइंट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस बताइए जो आप कभी नहीं भूल सकती हो. ट्रांसफॉर्मेशन. एक लड़की थी, एक मेरे पास, एक लड़की क्या, एक लेडी थी, औरत, गाइडेंस के लिए आई. तो मुझे कहती है मेरा हस्बैंड मुझे बहुत अब्यूज करता है, थ्रेटन करता है कि वो सुसाइड कमिट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा. मैं उसके साथ नहीं रहती, फड़फड़ाती रहती थी. हाँ, कि आई कांट वर्क बिकॉज ऑफ हिम. उसने इतनी हीलिंग, इतनी गाइडेंस ली मुझसे कि अभी उसका प्रॉपर स्कूल रन कर रहा है. शी इज सो स्टेबल. वाओ. अब उसका हस्बैंड कुछ भी करे, उसको फर्क नहीं पड़ता है. पहले उसका हस्बैंड उसको एज अ बैटरी नहीं होता, ऑन ऑफ रिमोट, कि वो कूदे तो वो कूदे, वो बैठ जाए तो वो बैठ जाए. अब वो अपना काम करती है, अब वो अपनी कंपनी की लीडर है, वो अपना खुद का बिजनेस चलाती है, उसकी लाइफ में शांति है, मुझे ज्यादा कॉल नहीं करती, तो मुझे पता है खुश है. ग्रेट. ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. लग्जरी, फैशन और स्पिरिचुअलिटी दोनों कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड्स हैं. आपने जी, दोनों को कैसे मैनेज किया है? मेरे को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी बहुत
हाई लेवल पे है मेरे लिए नंबर 1। स्पिरिचुअलिटी की कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज के साथ, ठीक है। लेकिन मेरे को ये भी लगता है कि भगवान ने मुझे एक अच्छी पर्सनालिटी, काफी अच्छी चीजों के साथ ब्लेस किया है। तो क्यों यस, ना मैं अच्छे कपड़े पहनूं और खुद भी अच्छे लगूं। तो लग्जरी इज अ सेकेंड हैंड बाय प्रोडक्ट फॉर मी, कि चलो I should look good, and somewhere I feel like I am blessed with having good taste. मैं एक साधारण से कुर्ती में भी मुझे लगता है अच्छी लग जाती हूँ, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए लग्जरी और फैशन ही है। और राइट। मुझे ये पता है कि इस कुर्ती के साथ ये बैग पहनना है तो वो बहुत लग्जूरियस और फैशनेबल लगेगा। तो ये भी एक तरीका है फैशन का। योर ओन स्टाइल अकॉर्डिंग टू मी इज योर फैशन एंड लग्जरी। एब्सोल्युटली। हम यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी जो कंफ्यूजन में रहते हैं और या इस वक्त कंफ्यूज्ड फेज में हैं? यंग एंटरप्रेन्योर्स को मुझे ये कहना है कि आप एक छोटा सा बूंद भी ले लो ना स्पिरिचुअलिटी का, इतना सा, सुबह उठ के 10 मिनट का भी मेडिटेशन कर दो ना। मैं नहीं कह रही आप 1 घंटा करो मेडिटेशन या 3 घंटे करो। सुबह उठ के एक बूंद भी डाल दो मेडिटेशन का और स्पिरिचुअलिटी, तो यू कैन चेंज योर लाइफ। दिस इज फॉर द यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज वो खुद से देखेंगे चेंज अपनी लाइफ, खुद से देखेंगे हीलिंग, खुद से देखेंगे उनकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगी, उनकी खुशियां बढ़ जाएंगी, बहुत चीजें होंगी स्पिरिचुअलिटी से। करेक्ट। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे हम आपके साथ, राइट? जी जी, आई लव रैपिड फायर। मी टू। सो टैरो कार्ड्स और ज़ोडिएक साइंस, टैरो कार्ड्स। स्पिरिचुअलिटी या एंटरप्रेन्योरशिप, स्पिरिचुअलिटी। मॉर्निंग मेडिटेशन या नाइट मैनिफेस्टेशंस? मॉर्निंग मेडिटेशन। वन वर्ड फॉर सक्सेस, पीस। वन वर्ड फॉर पीस, गॉड। कॉफी या ग्रीन टी? कॉफी आजकल ना, ब्लैक वाली कॉफी ना, बिना दूध वाली, वो अच्छी लगती है मुझे आजकल। अच्छा, ओके। डेस्टिनी या हार्ड वर्क? दोनों चूज कर सकती हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरे को लगता है डेस्टिनी और हार्ड वर्क हैंड इन हैंड जाते हैं। अगर आपके हाथ में लिखा है ना कि आपको ये चीज मिलनी है, तो उसके लिए भी आपको हार्ड वर्क करके उठ के करना जाना है, पड़ेगा, लेने राइट। के लिए। भगवान राइट। ने वो चीज लिखी है, पर उसके पास जाओगे तो सही लेने के जी लिए, जी, तो बिल्कुल। हार्ड वर्क करोगे। फैशन शो या स्पिरिचुअल रिट्रीट? स्पिरिचुअल रिट्रीट एनी डे। आई लव दैट। आई लव दैट। वन हैबिट दैट चेंज योर लाइफ? When I woke up in the morning in silence and I started just listening to what God has to say to me rather than telling Him so much. वंडरफुल। Yeah. एक लाइन फॉर पीपल सर्चिंग क्लैरिटी इन लाइफ? Om Namah Shivaya. बिल्कुल, हम वैसे भी हम गुरु जी को मैं मानते हैं, तो हम बहुत लोग शिव जी की भी। भक्त हूँ। जी, हाँ, गुरु जी, जय गुरु जी ऑल्सो, बट बिल्कुल। शिवा, लॉर्ड शिवा इज एवरीथिंग टू मी। तो ओम नमः शिवाय। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो चलते चलते एक आपसे दो सवाल है मेरे। एक तो उन विमेन्स के लिए, दोज हु हैव हिडन टैलेंट्स बट कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी है, दोज हु हैव हिडन टैलेंट्स बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, और कहीं ना कहीं हिडन टैलेंट्स है पर कॉन्फिडेंस की कमी है, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है एज एन entrepreneur and tarot reader, renowned tarot reader I should say? तो थैंक यू। गायत्री जी, आपका क्या एक मैसेज रहेगा उनके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास तीनों हो, कॉन्फिडेंस भी हो, फाइनेंशियल पावर भी हो, और एक और आपने बोला है, थर्ड टॉक्सिसिटी। पॉइंट, टॉक्सिसिटी तो होती है लोगों के अंदर, क्योंकि लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं काफी हद तक। जरूरी नहीं है कि सब कुछ हो आपके पास, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, तो मैं कह रही हूँ आपको कुछ भी मिल सकता है दुनिया में। बस उठो, तैयार हो, अपना स्माइल लेके आओ, अपने फेस में ग्लो करो, और जाके उनसे बात करो कि आपको उनसे जॉब करना है। इतना ही कर दोगे ना, तो आगे चीजें बढ़ने लग जाएंगी। उठो, पहले कॉन्फिडेंस यूज करो अपना। आई थिंक कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट आउटफिट अ वुमन कैन वेयर। दिस इज माई एब्सोल्युटली, थिंक। एब्सोल्युटली। और
एक छोटा सा डेमो करेंगी, आप मेरे लिए कार्ड निकालिए। राइट, सो ये टैरो कार्ड्स है, ये मैंने फर्स्ट मेरा डेक है जो मैं अभी भी बहुत प्यार करती हूँ इनसे। ये है राइडर वेद स्मिथ। सो वील ओपन वन स्पेशल कार्ड फॉर दिस ब्यूटिफुल लेडी इंटरव्यूइंग मी राइट थैंक हियर। यू। थैंक यू वेरी मच डियर। Oh my God, Knight of Wands. दैट पहली मीन्स बात तो ये मार्स से रूल्ड है ये कार्ड। आज ट्यूसडे है, मंगलवार है आज, और ये एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है जो आप हो। आप किंग भी हो, आप वॉरियर भी हो, और आप क्वीन भी हो। तो एक बहुत आप ऐसे हो ना, आपके अंदर ड्राइव बहुत है, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपने मन बना लिया तो। आपके अंदर बहुत 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 फिजिकल और इनर स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत हाई है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो You're मच। welcome. तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली फॉर योर सर्विसेज थ्रू ताजा टॉक्स प्लेटफॉर्म? कहाँ कहाँ So, मिलेंगी आप? व्हाट्सएप बिजनेस इज नंबर वन, वहां पे डायरेक्ट बुकिंग हो जाती है ऑफ कोर्स। नाउ इंस्टाग्राम is also amazing. Instagram, then we have LinkedIn, ओके, Facebook, YouTube channel, everything, all the social media channels. so you want me to share your WhatsApp number under the episode? Yes, you can, because it's my WhatsApp business. मेरे कंपनी का ही नंबर है ये, अस्टारा का। Okay, okay. So it was really incredible conversation with you. हमें Same पता here. चला कि एक्चुअली क्या क्लैरिटी होती है टैरो रीडिंग में, जो सही तरीके से की जाए तो। और Right. आपसे जो कनेक्ट करेगा, मुझे लगता है वो कहीं पीछे जा ही नहीं सकता, उसे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Thank you so much. डेफिनेटली। सो व्यूअर्स, एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिए जाएंगे, लिंक्स के अंडर ही मैम के लिंक्स आपको मिलेंगे। सो डेफिनेटली सही डायरेक्शन, सही पाथ, सही गाइडेंस पे जाना चाहते हैं तो गायत्री जी को कनेक्ट कीजिए। प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आपको इनका एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। थैंक Thank you यू। so much. God bless you. Om Namah Shivaya.